For mental health, what do you want to say about it? Because these days mental health is very important for everything, like COVID gone and now the situation is going very hard. So what do you want to say about it? And tell us about this initiative taken by Shobha Aryaman. Okay. I have always spoken from the heart. I think आप लोग मुझे जानते हैं for the past 28 years. When I started my career, I was just 1 year old. 28 years हो गया तो फिर I cannot say ना what my real age. Correct. But I am a very real person and I live a real life, and that's why you can catch me kind of smiling. It's a little funny that I'm sitting here, I'm a chief guest and all. And 5 minutes ago I was on the street, getting an auto and trying to tell my kids, you sit quietly, I'm coming, and you don't. So I think real life is very important. Real life, okay? Yes, this is a beautiful honor that I could be a part of this. When it comes to mental health issues, what I would like to say is कि हम सब पागल हैं, हम सब कहीं ना कहीं, and अगर हम पागल नहीं हैं by chance, तो हम पागल हो जाएंगे इस दुनिया में रह के. Now comes on a more kind of lighter note, but seriously speaking, I think all of us with the pandemic did kind of realize a lot of things about life. कि लाइफ जो है उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते. एक एक पल में कभी भी एक एक सांस का भरोसा नहीं. कभी भी कुछ भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है. यू वांट इंग्लिश, हिंदी, parler français, पंजाबी आंदी है. Mental health is something we all face. I have 2 boys, Krishna and Vishnu, and जब से वो पैदा हुए हैं तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, and I'm like all the time. All I mean, it drives you crazy because you don't know how they function. There's no logic. They don't know, And so life itself puts so many challenges. Now comes the solution. We have to fight it out. We have to conquer it. We have to overcome. Nobody is immune to it. Nobody. चाहे वो टॉप लेवल पे हैं, चाहे वो रोड पे हैं, हर एक के पास चैलेंजेस हैं और हर एक को ओवरकम करना है. That's why I congratulate Shobha ji and your name? Iram ji, okay, for putting together this initiative. क्योंकि इंडिया में ख़ास तौर से, I grew up in Canada, but I love my India. मैं इंडिया में ही मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा कनाडा से. वहाँ पर mental health is very, very common. Everybody talks about their mental health issues. Nobody's afraid of it. यहाँ पर जो है एक स्टिग्मा है. मैं खुद साइकोथेरेपी कराती हूँ. In fact, last August, September, 4 of us we had COVID. My husband, me, and the kids. And me being the woman has to do everything, right? Mother, wife. तो अगस्त में मैंने कहा मैं एक अच्छी खासी साइकोथेरेपिस्ट ढूंढती हूँ, और मैं फ़ोन पे लग गई. 20-25 मैंने कहा मैं निकालती हूँ और सब एक एक से मैं बात करके आई वांट अ प्रॉपर वन. जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो आई कैन फाइंड आउट. इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. आई एम वेरी ओपन अबाउट इट, क्योंकि जब तक मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो मैं औरों की हेल्प कैसे करूँगी. फर्स्ट आई हैव टू बी ऑल राइट, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग वी गो थ्रू सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ दैट वी नीड हेल्प एंड वी नीड सपोर्ट. इफ़ वी आर लकी दैट वी हैव फ्रेंड्स, great. If not, professionals who can understand, who can support, and who can help us. Because to me, who can hear your story, and give you concepts that we now comes to another concept. That is, I'm homeschooling my children. I don't send them to school. Okay? मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ रहते हैं. बस अभी 10-15 मिनट आ गया लेके मैं यहाँ पर आई हूँ, and I have to rush back to them. वो कह रहे थे कि हम आ जाएंगे, मे बी आई ब्रिंग देम ऑन सैटरडे. तो रीज़न क्या है? क्योंकि स्कूल में हमें लाइफ स्किल्स सिखाना चाहिए. लाइफ स्किल्स, बॉडी, माइंड एंड सोल. ओके, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, हाउ टू लिव.
वो हमें सिखाना चाहिए। Absolutely, absolutely. Okay, और अगर स्कूल में नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, दैट इज़ एन ऑप्शन, जिसने जाना है स्कूल जाए, नो प्रॉब्लम। बट आई फेल्ट आई नीड टू बी विथ माई चिल्ड्रन, नॉट सो दैट आई कैन टीच देम, बट दैट आई कैन लर्न फ्रॉम देम how to be happy, how to be a child, how to be innocent, and we share together our journey. So coming back to psychotherapy, so I found a couple of good psychotherapists. उनसे बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ. Within a few minutes I was learning concepts which I never learned in my life. So I feel very happy. But then I moved on. After that I felt कि अभी अपॉइंटमेंट लो, बैठो, मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ गया, तो मैं अपने आप को समझा लेती हूँ, अपने आप को ही मैनेज कर लेती हूँ. So the point is that mental health is something as important, maybe in fact more important than physical health, because माइंड अगर ठीक रहेगा तो हम बॉडी का भी ध्यान रख सकते हैं. अगर माइंड ठीक नहीं है तो कौन एक्सरसाइज करेगा, कौन योगा करेगा, कौन जिम जाएगा. और उससे भी इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल हेल्थ. A human being has 3 parts: body, mind and soul. Okay? The soul is at the base. Soul से mind, mind से body. इसको फिलोसफी में बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, फिजिकल बॉडी. तो पहले सोल होता है, फिर कॉजल बॉडी, द थॉट बॉडी, फिर एस्ट्रल बॉडी, एंड विच आवर आर्टिस्ट फ्रेंड नोज हाउ टू कैप्चर. एस्ट्रल बॉडी एंड देन द फिजिकल बॉडी. सो mental health is so important, and I am indeed thankful, and I feel I encourage everybody to take care of your mental health and the mental health of those around you, your family. And it's not something serious. It's not जैसे physically चोट लगती है तो mentally भी तो हम down हो जाते हैं. What's the big deal? अगर हम साइकोथेरेपी कराते हैं, अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर हम साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, तो वो हमें ज़रूरत है, so that we can heal ourselves and then we can function at our best capacity. Also, शोभा मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह का सपोर्ट इरम्स एंटरटेनमेंट से मिला है, आप चाहेंगे कि और भी लोगों का सपोर्ट मिले इस इनिशिएटिव के लिए? डेफिनेटली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं, वी ऑल ह्यूमंस आर वर्किंग ऑन आवर फिजिकल बॉडी. ओके, हम फिजिकल बॉडी के लिए जिमिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं. ओके, वॉकिंग करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट टू कीप फिजिकली फिट. लेकिन व्हाट अबाउट योर इमोशनल एंड मेंटल बॉडी? जब तक आप अपने इमोशनल और मेंटल बॉडी को फिट नहीं करेंगे, आप जितना चाहे फिजिकल एक्टिविटी कर लो, आपकी फिजिकल बॉडी तो ठीक हो जाएगी लेकिन मेंटली ठीक नहीं होगा, एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ डिजीजेस इन योर बॉडी. ओके, दैट वो जो पाइल अप इमोशंस होते हैं ना, वो ही क्रिएट करते हैं आपको कैंसर, अस्थमा, अल्जाइमर, जो भी आप बीमारियां बोलो, वो सब आपकी इमोशंस ही क्रिएट करते हैं. तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, हम आज के दौर में भी हम रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं. हम लोग फिजिकली पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और बहुत कंफर्टेबली इमोशनल और मेंटल बॉडी को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए. वी हैव टू वर्क ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल बॉडी, और वो जो फिजिकल बॉडी है वो अपने आप ही ठीक हो जाती है मेंटल एंड इमोशनल को अगर ठीक करें तो. सो आई वुड want to give a message to a lot of people who are watching this show and the event that we are doing on the 23rd of April in Radio Club, which is WOW Mental Health and Alternate Therapies Summit and Awards. I would really request support and donations and donors to come forward to support this event, so that we can take this awareness to the next level. We can do a lot for the society, but without the support, it's not possible. So I encourage and I request a lot of people to join this, event on 23rd and come and help us support. Besides that, Iram Entertainments has been playing a major part in this event. She is our powered by sponsor. She is Iram Faredi. And when I had explained the concept to her, without a second thought, she definitely came forward and she said, I will do the powered by sponsor. I said, most welcome to do it, because it is a cause, it needs awareness, it needs to spread. Alright, so
जब एक के साथ दूसरा जुड़ता है एक कारवां बनता है और वो कारवां से ही सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट होता है। ऐसी मेरी सोच है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने इमोशनल और मेंटल बॉडी पे फोकस करें, ना कि हम फिज़िकल बॉडी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी अगर आपका मेंटली फिट है। आप मेंटली फिट हैं तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी तो वैसे ही ठीक होनी है। लेकिन आप फिज़िकल जितना चाहे मर्जी एक्सरसाइज कर लो, जितना चाहे वर्किंग कर लो, बॉटम लाइन इज़ कि आप डिजीज़ से भाग नहीं सकते हो। आप डिजीज़ से तब तक भाग नहीं सकते हो जब तक आपके अंदर का कचरा क्लियर नहीं हुआ है। और वो अंदर का कचरा ही क्लियर करने के लिए ये अवेयरनेस है कि हम इमोशन से बाहर आएँ। पैंडमिक ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। बहुत लोग जो हैं वो लोग ने अपने लव्ड वंस को खोया है। बहुत सारे लोग लोनली हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को अल्जाइमर, एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है। सुइसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। क्यों? स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, इसके लिए मेडिटेशन पे फोकस करना है, इसीलिए अपने इमोशनल और मेंटल वेलबींग पे फोकस करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी है। बच्चों को भी स्ट्रेस होता है स्टडीज़ का। पीयर प्रेशर इतना बढ़ गया है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक पीयर प्रेशर। उसके कारण कितना स्ट्रेस लेते हैं हम किस लिए स्ट्रेस ले रहे हैं? अपनी सेहत को ख़राब करने के लिए? तो वो नहीं लेना है हमें। आई कम्प्लीटली एग्री। मैं बिल्कुल इसीलिए कोशिश करती हूँ जितनी चीज़ों में से निकलूँ मैं, एज सिंपल लाइफ एज पॉसिबल। Yes, minimalistic living. Yeah, I have time to walk, I have time to be with my children. फिर भी टाइम नहीं मिलता है, फिर भी इतने काम रहते हैं। So as much as we can get out of materialism and we can live simply, then we will be less stressed and we'll have more time for the quality in life. Yes, I would certainly, want to create this awareness big time in the society. But I always believe that I alone cannot do anything. Okay, it is together a teamwork. It is together a support of one another, which takes you to another level. All right, and it is not here about level. It is that if we don't start working on our mental well-being right now, before we realize, it will be too late. It will be too late, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा आप बातों बातों में डिप्रेशन में कब चले जाओगे। यू अंडरस्टैंड? तो ये सब चीज़ों का अवेयरनेस क्रिएट करना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पूरे सोसाइटी में बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं ऑल्टरनेट हीलिंग में। ऑल्टरनेट हीलिंग एक ऐसा फोरम है जहाँ पर आप नेचुरल वे से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। ओके, और हमको ये डे टू डे लाइफ, आपकी जो डे टू डे लाइफ है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ मेंटल वेलबींग। तो आप सुबह चाय पीने से लेकर रात को सोने तक क्या करते हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। तो वो सब चीज़ों का अगर हम ऑल्टरनेट हीलर्स मिलके भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे करें जब तक हमको सपोर्ट नहीं मिलता? हाउ डू वी डू इट, सो दैट इज़ जस्ट वन रिक्वेस्ट। एंड ओवर टू इराम। इराम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है कि सोशल कॉज को हमेशा से आप सपोर्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। जैसे मैंने मेंशन किया कि 2 साल में पेंडेमिक देखा हम लोगों ने, बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, सुशांत सिंह राजपूत से लेके जितने भी लोग थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था टू कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट दिस कॉज? First of all, I would like to thank Shobha ji for this award shows mental health summit जो आप create आपने किया है। Thanks to Ruby ma'am also. I am meeting her first time in my life. मैंने उनको देखा है हमेशा TV पे and she is a pure soul for me and thanks to रेणुका जी because आप यहाँ तक लेके आए, क्योंकि जो मेरे जो पैटर्न है, जो मेरा बेस है, वो मैं कभी नहीं भूलती। तो दिस इज़ माई ड्यूटी टू गिव थैंक्स टू यू ऑल। और मैं एक चीज़, आपने मुझसे पूछा, मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि आप सोसाइटी में देखिए, आपको साइकेट्रिस्ट की क्लिनिक और बहुत से ऐसे हीलिंग की क्लिनिक बहुत कम मिलेंगी रेदर देन फेस का, इसका उसका जिम, ये बहुत सारे हैं। वी आर टेकिंग दैट इनिशिएटिव। आई वॉन्ट दैट पीपल शुड कम स्टेप अहेड और ये करें, लोगों को करना चाहिए कि इस टाइप के अवार्ड कितने हैं, हम फिल्म को लेकर, बॉलीवुड को लेकर बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो क्रिएटिविटी है शोभा जी लेकर आए हैं, दिस इज़ रियली वंडरफुल। और एरम्स एंटरटेनमेंट तहे दिल से थैंक यू कहता है कि हमें मौका मिला है इस तरीके के समिट में एक बहुत बड़ा पार्ट बनने का।
तो मैं यही कहती हूँ लोगों से कि इस तरीके की चीज़ें आगे होनी चाहिए और लोग अपना कॉपरेशन ज़रूर दें, बिकॉज़ यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ तक पहुँचती है। तो जब हमारा ये क्लीन होगा तभी हम कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर पाएंगे, आपकी पर्सनालिटी बनती है। एंड आफ्टर दिस शो मैं शोभा जी से पर्सनली मिलने वाली हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत तकलीफ़ें हैं लाइफ में। तो अगर कुछ अच्छा कर लिया जाए इसी बहाने तो इससे अच्छा क्या होगा। And I appreciate how she's being so honest. Yes. I think when we say the word depression, I think everybody suddenly feels मैं खुद कितना depressed हो रहा है. क्योंकि I'll tell you, it's actually true. Who's happy? Nobody is happy. I don't think I know even a single person who's really happy. They just show, some people show from the outer side and some people hide it. But hiding is more dangerous. Okay? Whatever, whether you're depressed, you feel like crying, you feel like venting out, आप किसी के साथ अगर कोई नहीं मिलता आपके आसपास, तब भी मैं तो बोलूँगी आप कोई बीच के पास चले जाओ, कोई पेड़ के पास चले जाओ और दिल खोल के रो लो, दिल खोल के बातें कर लो पेड़ के साथ भी, लेकिन अपना दिल खाली करो, क्योंकि वो जो दिल आप भरोगे ना आपके इमोशन से, वो ही आपको आगे तकलीफ देने वाली है। तो आप रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है रोने में, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, हम रोएंगे। ओके, तकलीफ होगी, किसी को भी होगी तो वो रोएगा ही। But I really want to thank a lot of people through this media to tell them that it is important for every one of us to hold hands with each other, support each other and grow together. One of which is of course Iran's Entertainment. She has really been the pillar for the show. Besides that, I would also like to invite Professor Renuka Bangar. She is being a real back-end support for me. We have Reema Behel ji. So, and in the town side where we are actually conducting the event in the radio club, okay, I have my cousin brother, his Pradeep Gidwani, okay, he has gone out of the way to help me. So, also to not only help me in organizing this big event, but at the same time helping to spread awareness of this and trying to convince people to come forward to support us. Because like I said, it is not, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मीडिया बोलो, एक दूसरे के साथ जुड़ना बोलो, हम सब मिलके ही कुछ कर सकते हैं। और अगर हमको सोसाइटी में चेंज लानी है तो हम सबको एक दूसरे के साथ जुड़ना ही है। वो सेलिब्रिटी हो तो भी मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो कि बिजनेस टाइकून हो, एवरीबडी कैरीज देयर ओन बैगेज। कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते, फ़र्क उतना ही है। Also, I think what Shobha ji is trying to say, and what Iram ji also said, कि बॉडी के लिए जिम हम जाते हैं and it's cool, right? और फिर हम योगा के लिए जाते हैं for spiritual healing. We go to our ashram, we go to our मंदिर, मस्जिद, church, जिससे and it's fine, normal, happy. Yeah. लेकिन if I'm going to a mental health center, तो suddenly what's wrong with her? वो तो पागल है, उसको क्या हो गया? मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। हमारी तो सोच ही ऐसी है कि मेंटल वेलबींग इज नॉट बीइंग पागल। It's a stigma. It is a stigma. In India, not abroad. In India, it is like Yes. we must, because that's why we suffer. I think we need to understand at a very root level कि जो ये धरती है, ये जो लाइफ है, ये कुरुक्षेत्र है. We are here to fight the good over evil within our own self. Which means जो माइंड है, जो हमें नेगेटिव थॉट्स देता है, या जो सोसाइटी की लिमिटेशंस है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मैं ये पहनूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, all of those things we have to overcome in order to survive. Exactly, ma'am. मैं So एक many चीज़ things, so बोलूँगी। many things, we are stressed out all the time. बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मैम। क्यों कोई भी अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वाई दे हैव टू हाइड देयर रूटीन और देयर Exactly. टाइमिंग्स कि नहीं हम जा रहे हैं, हम नहीं बता सकते, सो सामने लगा पागल है। मैं आपको एक क्लियर बताती हूँ ऑन कैमरा। आई हैव बीन टू, मेरा कुछ केस हुआ था तो मेरे को साइकेट्रिस्ट का एक होता है ना, हाँ, treatment जो लेना। ट्रीटमेंट होता है, नहीं वो ट्रायल होता है, हाँ counseling। काउंसलिंग वो देते हैं। एंड आई वॉज सो, मैंने देखा माहौल था वहाँ पे, एक लड़का था, ही वॉज सो डिप्रेस, ऐसा ऐसा था। आई वॉज सो क्वाइट एंड आई बिलीव माई सेल्फ, आई वॉज देयर।
और जो डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट थे, वो जिसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, जब मैं आके बैठी तो दे स्टार्टेड आस्किंग मी 1 2 घुमा घुमा के क्वेश्चन पीछे 3 4 अगेन पीछे से, मतलब क्वेश्चन पूछते कि स्टेबिलिटी। देन वो उठ के गए, मैंने कहा अब क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। देन किसी को बुलाया जो उनके हेड थे, मैंने कहा आस्क आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हर। वो बैठे, उनके हेड बैठे, उन्हें दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ था। आई वॉज सिटिंग देयर 4-5 hours, तो मेरा नंबर आया था एंड आई वॉज क्वाइट बिकॉज आई वॉज क्लियर विद माई थाट्स। मैंने सच बोला, एक एक बात बताई, ये था एंड दे क्लियर मी, दे क्लियर। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यस, ये हिचक अंदर से निकालनी होगी। ये जो मेंटल हेल्थ समिट है, ऐसे बहुत से ऐसे होनी चाहिए। शोभा मैं कह रही हूँ, आप हर साल ये चीज़ करिए और मुझे पता है लोग आएंगे और ज़रूर आएंगे। मैं इरम यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मेरा जो नेक्स्ट विजन है इसको लेके कुछ थोड़ा सा बड़ा है, जिस पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। बट जैसे मैं बोल रही हूँ कि अकेले मैं नहीं कर सकती, हमको सब तरह से सपोर्ट चाहिए होता है। ह्यूमंस का सपोर्ट चाहिए होता है, कोलैबोरेशंस चाहिए होते हैं, स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं, बिकॉज खर्चे तो है ही ना, उनको तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो कुछ भी करने के लिए वो सपोर्ट चाहिए होता है। हम वो सपोर्ट डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं और जैसे ही हमको कोई ऐसा सपोर्ट मिल जाता है, ट्रस्ट मी, आई हैव अ वेरी बिग विजन ऑन दिस एंड आई वांट टू एक्सपैंड दिस इन द सोसाइटी। Well, The need of the hour. I personally request our Honorable Prime Minister Modi ji that please start a movement in this country. I know a lot of people, we have a team who is ready. Yes. Body, mind and soul. Yes. Let us work for the health of body, mind and soul of India and of the entire world. Thank और you. अगर हम ये करेंगे, अगर एक एक इंसान अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को ठीक रखेगा, तो विश्व में शांति होगी और किसी को किसी बात की भी तकलीफ नहीं होगी. It starts with each individual right here. Absolutely. Modi ji, if you are listening Thank to you me, so please much. help us. Thank you so much, Modi ji. Thank you so much. रेणुका Thank जी, you. आप लोग कहते ना कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ तो है, कुछ तो है. हाँ, सेकेंड. बताइए, और इवेंट के लिए कितने एक्साइटेड है आप लोग? नाम से स्टार्ट करते हैं. मैं हूँ प्रोफेसर रेणुका बांगर फ्रॉम आर इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनालिटी एनहांसमेंट। मेंटल हेल्थ की जब बात होती है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली टोटली रिलेटेड टू योर इनसाइड एंड आउटसाइड पर्सनालिटी। शोभा आर्या के वाव क्लब के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इट्स एन ऑनर फॉर मी एंड रीमा। जुड़े, इनको जाना, इनको समझा, इनके विजन को जब मैंने देखा और महसूस किया, आई अंडरस्टूड वन थिंग, दिस लेडी इज आउट टू क्रिएट हिस्ट्री। शी इज़ द क्वीन मेकर एंड वी आर ब्लेस्ड टू बी विद यू। देखिए, बहुत सारे लोग इवेंट करते हैं, बट इवेंट के पीछे का कॉज, कारण, समाज में एक बदलाव लाना। एंड शोभा आर्या इस समिट के द्वारा, जहाँ पर बहुत सारे थेरेपिस्ट, प्रोफेशनल्स, ईदर फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, बी इट हीलिंग, बहुत सारे तांत्रिक विद्या भी हैं, इन लोगों के बारे में समाज तक एक मैसेज जाएगा। एक डिस्कशन होगा पैनल पर, हम लोगों से सवाल किया जाएगा, जैसे मैं हूँ एजुकेशनिस्ट, देयर इज़ एन एस्ट्रो फिजिशियन, देयर इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, अ फार्मिस्ट, अ टैरो रीडर। ये लोग मेंटल हेल्थ के साथ किस तरह से जुड़े थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, समाज में इन लोगों के बारे में बहुत कम जाना जाता है। ये लोग अपने तरीके से काम करते हैं। शोभा आर्या ने इन लोगों को फॉरवर्ड लाकर समाज से मिलाने का ये बहुत बड़ा कार्य किया है, विच इज़ कमेंडेबल। और बहुत अच्छा लग रहा है इनके विजन के साथ जुड़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान के अंदर एक नीड होती है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी इमोशनल जर्नी, अपनी फिजिकल जर्नी के साथ जुड़ते हुए एक बेहतरीन इंसान बना दिया जाए। सो वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मुझे अप्रोच किए शोभा जी ने इसके लिए, फिर मैंने देखा हेडलाइन क्या है. सो दिस काइंड ऑफ शो इज़ वेरी रेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल बॉडी के लिए हम लोग जो भी एंटरटेन लेते हैं, दैट्स फॉर फिजिकल बॉडी. एंड सम पॉइंट मैं बोलता हूँ, लाफिंग के बाद अगर आता है तो ये जो कर रहे हैं मेंटल हेल्थ एंड सपोर्ट के लिए,
दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे इसलिए पिछले में आप क्वेश्चन पूछे थे कि बॉलीवुड में बहुत सारे सुसाइड केसेस हुए, बहुत सारे चीज़ हुए, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी मेरे पास आए थे लाइक लॉकडाउन के दौरान कि देवव्रत कुछ कलर थेरेपी करो जिसके दौरान हमारा मेंटली स्टेबिलिटी हो, किसका फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, किसी का फैमिली में डिस्टर्बेंस है, कोई सेपरेट रह रहा है, दे हैव सो मच डिस्टर्बेंस। ऐसा नहीं कि एक जगह से डिस्टर्बेंट हो सकता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होता है। सो मेन चीज़ है कि हमारा जो बोलते हैं मन आत्म तत्व, सो इट्स अ वेरी टिपिकल क्लिष्ट हिंदी आत्म तत्व। सो मन का अगर रूट को हम क्लीन करते हैं, उसको अगर हम प्योर करके रखते हैं, देन अपर लेयर ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। अभी मैं आया तो मुझे गर्मी के कारण इरिटेशन हुआ, तो पहले तो ये ऐसा नहीं होता है कि फिजिकल बॉडी पहले अफेक्ट होता है कि हमको गर्मी के कारण एजिटेशन या कुछ होता है, नहीं, पहले हमारा मेंटल इफेक्ट होता है, ओह कितना गर्मी है, क्या है, मुझे ये करना है। अगर वही सेम गर्मी कोई सुपरस्टार आ रहा है या किसी के साथ काम मेरा हो रहा है तो मुझे गर्मी का पता नहीं चलता है, बिकॉज एवरीथिंग इज डूइंग बाय आवर माइंड। तो यस, मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सो जैसे और भी मैंने पॉइंट मार्क किया कि शोभा जी बोले कि पेड़ के सामने बोलो। अगर आप मतलब इट्स फ्रॉम आवर वेदा, पुराने ज़माने में ऐसे कोई हीलर या थेरेपिस्ट नहीं थे, ऋषि मुनियाँ थे, तो वो लोग कैसे करते थे कि बोलते थे कि बनाना लीफ के सामने जाओ। अगर घर में आप बनाना का ट्री लगाते हो उत्तर दिशा में, अगर उसके सामने अगर आप कन्फेस करते हो, मतलब सपोज़ मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मैं किसी को जाकर बोलना नहीं चाहता, मैं थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहता, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहता, व्हाट यू विल डू इन दैट केस, यू कैन पुट अ बनाना लीफ उत्तर दिशा एंड यू टेल अबाउट योर सेल्फ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इट क्लियर योर ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो प्राणा होता है। एग्जैक्टली, ऑलराइट, तो प्राणा है वो। पेड़ आपकी बातें सुनता है, जैसे जानवर भी हमारी बातें सुनते और समझते हैं। मैंने ये बहुत ट्रायल एंड एरर किया है पेड़ों के साथ। ओके, आप जाके अपना विश, अपनी तकलीफ, अपना जो भी आपको बोलना है वो आप पेड़ों के साथ बात करिए, आपको वहाँ से एक जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। वो या तो कोई साइन होगा या तो कोई इंसान के थ्रू मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा। तो कमिंग बैक टू yes, trees. Yeah, that's come. तुलसी का पौधा हो गया, तुलसी Yes. so called हिंदुत्व, but you can take it as a medicinal plant. लेमन ट्री हो गया, it's so many things. ऐसा नहीं कि like इसके पीछे कोई अंधविश्वास है या ऐसे कुछ है, it's your feeling. आप कोई भी अगर कोई exactly कोई अगर मतलब बिलीव भी नहीं करता सर्टन थिंग को, अगर सेम थिंग वो प्रोसीजर अप्लाई करेगा देन इट विल अफेक्ट। जैसे हमारा प्राणिक हीलिंग में हम वाटर को यूज करते हैं मोस्टली, सो वाटर का इफेक्ट बॉडी में लाते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम समंदर के पास बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं, वाई? अगर कोई नहीं मानता चीज़ को तो वाई दैट पर्सन ऑटोमेटिकली बिकेम साइलेंट इन फ्रंट ऑफ सी, बिकॉज द पावर ऑफ द सी इज दैट मच। तो ये एक यूनिक चीज़ है जो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो शो है बेस्ट शो है, लोगों को ज़्यादा आना चाहिए। आई फील कि जैसे मोदी जी से रिक्वेस्ट किए, मैं भी वही दरख्वास्त करता हूँ थैंक यू सो मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इवन अगर ये हमारा गवर्नर सर भगत सिंह कोठारी जी भी देख रहे हैं, अभी रिसेंटली हमारा शो हुआ था, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि दिस शोज़ को सपोर्ट कीजिए, ऐसे टाइप का शो लाइए। या सो ऐसे शो होना चाहिए लोगों के बीच में, ये एक अवेयरनेस है। एंड मैं बोलता हूँ कि मेंटल है, माइंड है तो सब कुछ है। एंटरटेनमेंट माइंड के जरिए में मिलता है, हर एक चीज़ के जरिए में मिलता है। सो आई रियली थैंक टू शोभा जी कि ये ऐसा एक कंसेप्ट लाने के लिए जो कि शायद ही कहीं पे होता होगा। जैसे रूबी जी ने कहा, शोभा जी ने कहा, रेणुका जी ने कहा, देवजीत ने कहा, मैं इनके सब चीज़ों के ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ। एक एनर्जी होती है हर कोने में, हर जगह। जैसे इन्होंने अभी बात की, पेड़ की बात करी है, हर एक जगह की भी एनर्जी होती है। आपको पता होगा कि मेंटल हेल्थ के लिए अगर जो ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी जो कर रहे हैं, इसके बहुत सारे और तरीके हैं जिससे हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। वही शोभा जी लाने की कोशिश कर रहे हैं 23 को समिट में। हमें ये सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि वास्तु से भी मेंटल हेल्थ का आप क्योर कर सकते हो। एक वास्तु के दोष होने की वजह से भी
आपके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होता है। अब जैसे रूबी जी ने कहा, मैं मेरे बच्चों को स्कूल नहीं भेजती हूँ। रीज़न, मुझे उनकी बातों से एक ही बात, क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ, मुझे उनकी बातों से एक ही बात समझ में आ रही है कि एजुकेशन आज के तारीख में कंपटीशन है, इट्स कंपैरिजन। डे वन से एक नर्सरी में जाने वाले बच्चे को माँ अगर ABCD लिखने सिखाती है घर में, तो सबसे पहले ये बात आती है कि आपका भाई किस तरह से लिखता है, देखो आप किस तरह से लिख रहे हो, आपकी फ्रेंड किस तरह से लिख रहे हो। किसी ने अपने आप से कॉम्पीट करने नहीं सिखाया। जब एक मदर, एक टीचर हर बच्चे को अपने आप से कॉम्पीट करने सिखाएंगे, तो तब से उनका वो जो बेस है माइंड का, बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। तो कंपटीशन को भी ये मैं कहूँगी कि थोड़ा लेस इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कंपैरिजन बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर एक बच्चा कुछ काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको कहो कि 4 दिन के बाद वो और क्या अच्छा कर सकता है, न कि कंपैरिजन करो और उसके मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करो। बिकॉज आई एम इनटू एजुकेशन, आई फील दिस इज द नीड ऑफ द ईयर टू वर्क ऑन दिस particular place. Yes, from the child to an adult, everybody needs to work individually. और कोई आपको कुछ नहीं कर सकता जब आप खुद करना नहीं चाहेंगे। जब तक तो आप अपने आप से कॉम्पीट कीजिए। आज जो आप हो, 4 साल बाद आप कहाँ होंगे, वो कहाँ होंगी वो मत सोचो, वहाँ से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होगा यहाँ पर। सो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको वर्क करनी है। इसलिए तो बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी करो, शांत बैठो, पेड़ों से कहो, क्योंकि वहाँ से आपको फीलिंग आएगी, एक एनर्जी आएगी। आपको कोई बैठ के ये सलाह नहीं देगा, अच्छा वो वैसे थी, वो वैसा है, वैसे कर रहे हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नो, एक जन आए थे, बोले कि मेरे घर में बालकनी नहीं है जहाँ पे मैं पेड़ रख सकता हूँ, तो व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव। कुछ मत करो, कुछ नहीं रखना है तो कुछ भी मत रखो। सुबह उठ के बस मिरर के सामने खड़े रहो एंड जस्ट और एक दिन में 10 बार आप सुबह से रात तक जितना मर्जी काम कर लो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप सिर्फ अगर 10 से 15 मिनट कुछ भी नहीं करना है, आपको फ़ोन साइड पे रख देना है और अपने आप को एक रूम में लॉक कर देना है, और आप कुछ भी नहीं करोगे ना, सिर्फ शांत बैठो वो 15 मिनट, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके डेली लाइफ में। जो भी आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे, आपको आपकी तकलीफ़ों के जवाब मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ उनका जो फ्लो होता है वो आपके माइंड से निकलता जाएगा। आफ्टर एन हाफ एन आवर और मे बी 20 मिनट्स कंप्लीट ब्लैंक हो जाओगे, यू विल फील एट पीस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नो, जैसे बोले कि चाइल्ड का मतलब चाइल्ड के ऊपर भी ज़्यादा मेंटली प्रेशर दिया जाता है कि उसको इंजीनियर बनना है या उसको क्या करना है। सो मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया हूँ। आई मीन्स डिड लॉट ऑफ थिंग, इवन आई गेव लेक्चर इन IIT बॉम्बे ऑल्सो, सो मेनी वे। बट मैं आर्ट लाइन में आया तो मुझे पता नहीं था। सो यू कैन पुट सच काइंड ऑफ थिंग टू योर चाइल्ड, लेट इट बी, उसका क्या चाहता है वो, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसको पकड़ाओ हर एक चीज़, उसमें वो क्या पकड़ता है, उसमें वो किस में जाना चाहता है, इट्स अप टू हिम। सो एग्जैक्टली 23 अप्रैल रेडियो क्लब में जो समिट और अवार्ड्स होने वाला है, इसी चीज़ को दर्शाएगा कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ स्टिग्मा। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन से, लो सेल्फ एस्टीम से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद को न जानना, खुद को न समझना, इस सब दौर से हम लोग गुजरे हुए हैं। That is why we are all together here to showcase you an amazing program that is going to create an awareness. We owe our thanks to Eden Entertainment और जितने भी हमारे sponsors हैं, from Union Bank to Alhad and so many people, we need to call each of them and thank them। और ये सब होगा उस दिन। हमारे बीच एक और बहुत अच्छी थेरेपिस्ट बैठी हैं, she is going to talk about this। Thank you so much. So मेरा नाम तृप्ति सावंत है, very fondly known as Trupses सावंत। I'm the co-founder of Care of Mind Body Soul। आपका जो क्वेश्चन था शोभा जी के साथ एसोसिएशन का, मैं डेफिनेटली उसके बारे में बात करूँगी, बट सिंस एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एनर्जी, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी दैट एवरीथिंग विद इन अस, अराउंड अस इज नथिंग बट एनर्जी। हम सब बने ही ऊर्जा से हैं, and we all are connected with each other in the subconscious space in different time span, right? तो काफ़ी बार होता है आप कोई जगह पे एंटर करते हो, आपको वो जगह बहुत पसंद आती है, इट मे बी अ वेरी स्मॉल हाउस, दैट्स ओके, बट उसी तरह कोई लग्जरी अपार्टमेंट में जाओगे तो आपको वो कंफर्ट नहीं फील होता। सो बाय डिफॉल्ट एनी लिविंग बीइंग, बी इट ह्यूमन, बी इट
your pet, be it a plant, plants की हम बात कर रहे थे, everybody understands the language of energy. So first most important thing, आप जब आईने के सामने खड़े होते हो, what do you feel about yourself? Do you feel I'm not capable of doing something? Oh, I'm not looking good enough. Oh, आज तो मुझे लेट होने ही वाला है. Because everything happens in the mind first and then it happens in reality of our life. I'm sure आप सब agree करोगे. और जो हमारे pattern of thoughts है, वही उसको manifest reality में करते हैं. So coming back to the question, talking about Shobha, such a wonderful soul, I must say, despite of her own struggle journey during pandemic, जिस तरीके से उन्होंने अपने सिचुएशंस को सॉल्व करते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है थ्रू दिस अवार्ड एंड समिट दैट्स हैपनिंग ऑन 23rd April, it is fabulous because we get so many cases where people are in the self victim mode, नहीं निकलना चाहते उस चीज़ से बाहर, लेकिन शोभा is soared high, I must say, and she is a great inspiration for many women out there. और जिस तरीके से आप देख रहे हो दैट द मेंटल हेल्थ समिट इज नोन एज वाओ, इट स्टार्ट्स विद वाओ. सो आज से जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, यू नो व्हाट यू हैव टू से टू योरसेल्फ, वाओ.